So class 4, today we start our chapter number 10, which is clever animals. Clever animal मतलब चालाक जानवर. In this chapter we shall read about how 4 friends helped one another. इस chapter में हम ये पढ़ेंगे कि 4 friends जो थे उन्होंने एक दूसरे की कैसे मदद करी. Let's start our chapter. There was a washerman in the city of Patna. The washerman had a donkey that used to carry all the clothes to the ghats and back. The washerman used to give good food to the donkey. The donkey also worked very hard, but slowly the donkey became very old and was not able to work. Then the washerman stopped feeding the donkey. The donkey felt miserable and decided to go to Calcutta to become a musician. So one day he started walking towards Calcutta. एक वॉशरमैन था, धोबी था. ये बात है पटना सिटी की. तो उसके पास एक डोंकी था, यानी कि गधा था, जो कि घाट पे कपड़े लाता था और ले जाता था. और वॉशरमैन भी उसको अच्छा खाना देता था. लेकिन जब गधा जो डोंकी जो था वो बूढ़ा होने लगा तो उससे काम बहुत धीमा और कम होने लगा. तो जो धोबी था तो उसने उसको खाना देना भी बंद कर दिया. तो इससे जो गधा था वो बहुत दुखी फील कर रहा था, अनहैप्पी फील कर रहा था. तो उसने डिसाइड किया कि वो कलकत्ता चला जाएगा. कोलकाता, जो अब हम जिसको कोलकाता कहते हैं, वो कोलकाता चला जाएगा और वहाँ पर म्यूजिशियन बनेगा. तो उसने चलना शुरू किया कोलकाता की तरफ. On his way he met a dog that was weeping horribly. The donkey asked him, "Why are you crying?" The dog replied, "My master brought me to this house when I was young. He asked me to guard the house at night. I also used to do it carefully. He used to give me good food and care for me. I also used to like him. But now I have become old. I am feeling sleepy at night. I am not able to catch the thieves. And now my master has stopped giving me food. What should I do?" The donkey replied, "The same thing happened to me. So I have decided to go Calcutta to become a musician. Why don't you come with me?" The dog agreed, saying it was a very good idea. Then the donkey and the dog started their journey towards Calcutta. फिर जब वो रास्ते में एक डॉग से मिला, एक ओल्ड डॉग से, बूढ़े कुत्ते से, जो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था. डंकी ने उससे पूछा कि तुम क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो डॉग ने उसको बताया कि जब मैं यंग था, जब छोटा था या जवान था, तो मेरे मास्टर मुझे इस घर में लेके आए थे. तो उन्होंने मुझे इस घर की रखवाली रात को करने के लिए कहा था. मैं भी वो आराम से बहुत अच्छे से करता था और वो मुझे अच्छा खाना देते थे. लेकिन अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ और रात में मुझे भी नींद आ जाती है. तो इस वजह से मैं चोरों को कैच नहीं कर पा रहा या पकड़ नहीं पा रहा. तो अब उन्होंने मुझे खाना देना बंद कर दिया है. तो डंकी कहता है यही चीज़ तो मेरे साथ हुई है. और फिर वो अपना बताने लगता है कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो. तो फिर डॉग कहता है हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है. तो वो उसके साथ चल देता है. On their way, they both met a cat that was crying horribly. The dog and the donkey asked him, "Why are you crying?" The cat replied, "My master brought me to this house when I was very young. There were lots of rats in this house. I caught all of them. Whenever a new rat came, I used to catch it easily. My master gave me a lot of milk and looked after me well. But now I have become old. I am not able to catch rats anymore. So my master stopped giving me milk. I am crying because of that." तो फिर रास्ते में जब वो लोग चल रहे थे तो उनको एक कैट मिली, जो कि वो भी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी. तो उन्होंने पूछा क्यों रो रही है. तो वो अपना बताने लगी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे मास्टर लेके आए थे. तो मेरे मास्टर मुझे यहाँ पर इस घर में लेके आए थे. इस घर में बहुत सारे चूहे थे और मैं उनको आराम से पकड़ लेती थी. और इसके बदले में मेरे जो मास्टर थे वो हमको बहुत सारा दूध देते थे और मेरी देखभाल अच्छे से करते थे. लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझसे रैट्स नहीं पकड़े जाते. तो मेरे मास्टर ने मुझे दूध देना बंद कर दिया है, इसीलिए मैं रो रही हूँ. Then the donkey and the dog told the cat, "We are very sorry to hear your story.
We also become old and our master is not giving us food. So we decided to go Calcutta to become musicians. Why don't you come with us? The cat thought it was a very good idea and joined them. Then the donkey, the dog and the cat started walking towards Calcutta. तो फिर डोंकी ने कहा कि इसी तरीके की कुछ बातें हमारे साथ भी हुई हैं और हमें बहुत दुख हुआ तुम्हारी स्टोरी को सुन करके। फिर उसने बताया कि हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए, तो तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं आ जाती। तो कैट ने सोचा हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो वो भी उन लोगों के साथ चल दी। नेक्स्ट, on their way they met a cock that was crying bitterly. The donkey, the dog, the cat and the asked the cock, "Why are you crying?" The cock replied, "My master brought me to this house when I was young. I used to wake up early morning and wake him up so that he could go to work early. He also used to give me good food, but now I have become old. I also fall asleep in the morning, so I am not able to wake him up. Now he has stopped giving me any food. That is why I am crying." Then the donkey, the dog and the cat told the cock, "We are very sorry to hear your story. We also become old and our master is not giving us food. So we have decided to go to Calcutta to become musicians. Why don't you come with us?" The cock thought it was very good idea and joined them. फिर उनको एक कॉक मिला, मुर्गा मिला, जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, बुरी तरीके से रो रहा था। उसने जो कैट थे, डोंकी था, डॉग था, उसने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने बताया कि जब वो छोटा था तो उसके मालिक उसको लेकर के आए थे और वो जल्दी सुबह उठता था और उसको भी उठाता था ताकि, और वो उसको अच्छा खाना भी देते थे। लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है तो उसको भी सुबह नींद आ जाती है, तो इसलिए वो ना सुबह उठ पाता है और ना उठा पाता है। तो उनके मालिक ने उसको भी खाना देना बंद कर दिया, इसलिए वो रो रहा है। तो फिर डंगी ने वही बातें सब बताई कि हमें बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी बातों को सुन करके, और हम लोग भी ऐसे ही बूढ़े हो गए और हमारे मालिक भी हमें खाना नहीं दे रहे, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग कलकत्ता जाएं और वहाँ पर म्यूजिशियन बने, तो तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते। तो उस कॉक ने सोचा हाँ ये तो अच्छा आइडिया है और उनको ज्वाइन कर लिया। The entire day, the donkey, the dog, the cat and the cock walked and reached a forest. They all felt tired, so they decided to sleep. The donkey and the dog slept below the tree and the cat and the cock climbed up the tree. It was very cold and they were feeling very hungry. Then the cock, which was on the top of the tree, saw some light at a distance. पूरा दिन उन लोग चलते रहे। फिर इसके बाद एक जंगल में पहुंचे। वो बहुत थक गए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो थोड़ी देर सो जाते हैं। तो जो डोंकी था और डॉग था वो ट्री के नीचे सो गया, और जो कैट थी और जो कॉक था वो ट्री के ऊपर चढ़ गए। और बहुत ठंड थी और उनको भूख भी लगने लगी थी। उसके बाद मुर्गे ने देखा, कॉक ने देखा कि जो कि टॉप पे था ट्री के, तो उसने देखा कि कुछ दूरी पे कहीं लाइट जल रही है। दे डिसाइडेड टू गो देयर. They reached the place. It was a big house. The cock said that it would see who is inside. It flew near the window and came down. The donkey, the dog and the cat asked, "Who is there in the house? Can we get food?" तो फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे और देखेंगे क्या है। तो वो वहाँ पहुँचे, देखा एक बड़ा सा हाउस था कि उसने कहा देखो कोई है अंदर। फिर वो विंडो के पास गया और द डंकी, द कैट एंड उसने उससे पूछा कि अंदर कौन है, क्या हमें खाना मिल सकता है। द कॉक रिप्लाइड, "द हाउस हैज़ 3 robbers. They have a lot of food on the table." Then all of them spoke to each other and made a plan. तो उसने बताया कि अंदर 3 चोर हैं और उनके पास बहुत सारा खाना है टेबल पे, और वो एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं। द डोंकी स्टूड ऑन हिज लेग्स ऑन द विंडो, द कैट स्टूड ऑन द डॉग एंड द कॉक फ्लू एंड रिमेन ऑन द टॉप। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड सिंगिंग एट द सेम टाइम। फिर क्या हुआ, डोंकी खड़ा हो गया अपने पैरों पे विंडोज़ के पास। फिर कैट जो थी वो डॉग के ऊपर खड़ी हो गई, जो कॉक था वो
ऑल पहले ही से ऊपर चढ़ा हुआ था। ऑल ऑफ देम उन लोगों ने गाना शुरू कर दिया उसी टाइम पे एक साथ। द रॉबर हु वर इनसाइड थॉट दैट देयर वॉज अ घोस्ट आउटसाइड एंड रैन अवे। The donkey, the dog, the cat and the cock went inside and took as much food as they wanted and decided to sleep. The cat decided to sleep on the stove in the kitchen. The dog decided to sleep near the gate. The donkey decided to sleep near the outside wall and the cock decided to sleep on the roof. जो चोर अंदर थे उन्होंने जब उन लोगों ने गाना शुरू किया तो उनको ऐसा लगा कि कोई यहाँ पर भूत है और वो वहाँ से भाग गए। फिर वो लोग अंदर गए, डोंकी की डॉग कैट कॉक अंदर गए और जितना खाना वो खा सकते थे ले सकते थे उन्होंने किया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग सोएंगे। तो कैट ने डिसाइड किया वो स्टोव पे सोगी किचन में, डॉग ने डिसाइड किया कि वो गेट के पास सोएगा, डंकी ने कहा कि वो बाहर की दीवार की तरफ सोएगा और कॉक ने कहा कि वो छत पे सोएगा। द रॉबर्स हु हैड रन अवे felt hungry. They were watching their house from far away. When no sound was being heard, they thought that it is safe to return to their house. But they sent only one robber to the house to see whether everything was all right. फिर जो चोर थे जो भाग गए थे उनको भूख लगी, वो दूर से अपने घर को देख रहे थे। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अब सेफ है जाना, तो लेकिन वो सब एक साथ नहीं गए। उन्होंने एक चोर को घर पे भेजा और ये देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। दैट रॉबर स्लोली एंटर्ड द हाउस थ्रू द बैक डोर एंड वेंट इनटू द डार्क किचन. He wanted to see whether there was milk on the stove. When he was feeling with his finger, the cat jumped up from the stove and scratched his face. तो एक चोर अंदर गया धीरे से बैक डोर से किचन में और वो देखना चाह रहा था कि वहाँ पर उसने मिल्क रखा था स्टोव पे, तो वो अपनी फिंगर से टच करना चाह रहा था। तो उसी टाइम पे कैट ने जंप किया और उसके फेस पे स्क्रैचेस डाल दिए। द रॉबर बिकेम अफ्रेड एंड रैन आउटसाइड. द डॉग दैट वॉज नियर द डॉग door bit his leg. He ran near the wall. The donkey kicked him and threw him on the roof. The cock that was sitting there perked all over him with its sharp beak. फिर क्या हुआ, जब वो वहाँ से किचन से जब उसको उसके फेस पे स्क्रैचेस कर दिए तो वो वहाँ से डर के मारे बाहर की तरफ भागा। जब वो बाहर की तरफ भागा तो डॉग जो गेट के पास बैठा था उसने उसके पैर पे बाइट कर लिया। फिर वो दीवार की तरफ वॉल की तरफ भागा तो जब वहाँ पर डंकी ने उसको किक कर दिया और उसको रूफ छत पे फेंक दिया। और जब वो छत पे गया तो वहाँ पर जो कॉक था उसने उसकी पूरी बॉडी में अपनी बीक से काट लिया, पूरा छेद कर दिया। So the robber jumped from the roof and ran to the other robber and told them a new ghost has come to our house. It scratched me, bit me, kicked me and pecked me. So it is not safe to go there. The other robber agreed and went away. The donkey, the dog, the cat and the cock lived happily in that house. At night they all used to practice music lessons. फिर वो जो रॉबर था वो दौड़ता हुआ वापस अपने और दूसरे रॉबर्स के पास गया और कहा कि एक नया भूत हमारे घर में आ गया जिसने मुझे स्क्रैच भी किया, बाइट भी किया, किक भी किया और पैक भी किया, तो वहाँ जाना अब सेफ नहीं है। तो और जो चोर थे उसने उस चोर की बात मान ली और वहाँ से चले गए। फिर वहाँ पर ये चारों आराम से उस घर में रहने लगे और रात में ये लोग अपनी म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते थे। आई होप दिस लेसन वॉज क्लियर टू यू।